تو آج کا سبق ہے بدعت کا، ہے نا، کہ بدعت کسے کہتے ہیں، جو ہم نے آگے پڑھ چکے کہ بدعت کسے کہتے ہیں اور بدعت کی کتنی قسمیں ہیں، ہے نا۔ تو بدعت بھائی کسے کہتے ہیں؟ بدعت اسے کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو اور بعد میں ایجاد ہوا۔ بدعت اس کام کو کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو اور اس کے بعد میں اس کا ایجاد ہوا ہو، اسے بدعت کہتے ہیں۔ بدعت کی 3 قسمیں ہیں، بدعت سیاح، بدعت مباحہ اور بدعت حسنہ۔ بدعت حسنہ، بدعت سیاح اور بدعت مباحہ، ہے نا۔ تو ہم نے دو قسموں کا بیان پڑھا، پہلی بدعت حسنہ، اور آج ہم جو سبق پڑھنے والے ہیں اس بدعت کو کہتے ہیں بدعت سیاح۔ کیا کہتے ہیں؟ بدعت سیاح۔ تو بدعت حسنہ کسے کہتے ہیں؟ پہلے یہ سمجھ لو جو ہم نے آگے پڑھ چکے ہیں۔ تو بدعت حسنہ وہ ہے جو قرآن اور حدیث کے اصول کے موافق ہو۔ کیا ہے؟ جو قرآن اور حدیث کے اصول کے موافق ہو۔ پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، پھر جو قرآن اور حدیث کے موافق ہو اسے بدعت حسنہ کہتے ہیں، اور اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک بدعت واجبہ اور دوسری بدعت مستحبہ، ہے نا۔ اب بدعت واجبہ کیسے کہتے ہیں؟ تو بھائی جیسے کہ فن نحو کا سیکھنا، علم نحو کا سیکھنا، جو ہے کہ باطل فرقے ہیں ان کے رد کے لیے، ہے نا۔ اور پھر بدعت مستحبہ کیسے کہتے ہیں؟ تو بھائی جیسے اذان کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جسے صلاۃ کہتے ہیں، صلاۃ پڑھنا، یہ ہے بدعت مستحبہ۔ پکی مسجدیں بنانا، یہ ہے بدعت مستحبہ، ہے نا۔ اب آئے گا بدعت سیاح، کہ بھائی بدعت سیاح کیسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو بدعت سیاح وہ ہے جو قرآن اور حدیث کے اصول کے خلاف ہو۔ بدعت سیاح کسے کہتے ہیں؟ بدعت حسنہ اور بدعت سیاح میں فرق کیا ہے؟ بدعت حسنہ وہ ہے جو قرآن اور حدیث کے اصول کے موافق ہو، اور بدعت سیاح کسے کہتے ہیں؟ جو قرآن اور حدیث کے اصول کے مخالف ہو۔ سمجھے نا؟ ہاں۔ اب پھر اس کی بھی 2 قسمیں ہیں بھائی، اس کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، ایک بدعت محرمہ، بدعت محرمہ۔ تو بھائی وہ بدعت محرمہ کیا ہے بھائی؟ تو بھائی ہم جو محرم کے مہینے میں کرتے ہیں، تعجیہ داری کرنا۔ کیا کرنا؟ تعجیہ داری کرنا۔ یہ تعجیہ داری کرنا یہ بدعت سیاح ہے۔ مطلب یہ ہے، ہاں کیا ہے؟ یہ غلط ہے جو ہم کر رہے ہیں، تعجیہ داری کرنا، وہاں وہ تلواریں لے کر کے بازاروں میں گھومنا، وہ اپنے جسموں پر مارنا، ہے نا، اپنے جسموں کو کاٹنا، یہ سب بدعت سیاح ہے جو حرام ہے۔ سمجھے؟ جیسے تعجیہ داری کرنا جو اہل سنت والجماعت کے خلاف، یہ جو ہم کر رہے ہیں نا، اور پھر اس کو نام دیا جاتا ہے کہ ہم سنی ہیں بھائی، یہی نام دیتے ہیں نا، ہم سنی ہے اس لیے یہ سب کر رہے ہیں۔ نہیں بھائی، یہ تو اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے۔ اب دوسرا ہے بدعت مکروہہ۔ 2 قسمیں ہیں نا، بدعت سیاح کی 2 قسمیں ہیں نا، ایک بدعت محرمہ اور دوسری ہے بدعت مکروہہ۔ جیسے جمعہ اور عیدین کا جو خطبہ پڑھا جاتا ہے نا، جمعہ کے دن اور عید کے دن جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، وہ عربی میں نہ پڑھ کے ہندی میں پڑھنا یا کوئی اور زبان میں پڑھنا یا اردو میں پڑھنا۔ تو بھائی خطبہ جو سنت جو پڑھا جائے گا نا، وہ کون سی زبان میں پڑھا جائے گا؟ عربی زبان میں پڑھا جائے گا۔ اگر کوئی عربی زبان کو چھوڑ کر کے کوئی اور زبان میں پڑھتا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بدعت مکروہہ کہتے ہیں اسے، بدعت مکروہہ کہتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی کسی نے پڑھا اگر ٹوک دو تو چلے؟ ہاں کیوں نہیں، ہے نا، یہ غلط ہے نا۔ تو جو کوئی اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو بھائی وہ تو پھر ٹوکنا ہے کہ بھائی نہیں، تم نے یہ صحیح نہیں کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، ہے نا، اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ بھائی ہمیں بھیجا ہی تو اسی لیے گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو صرف دنیا میں کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، یہ کھیتی کرنے کے لیے اور کھیتی کر کے پیسہ کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ ہمارا سب سے پہلا فریضہ کیا ہے؟ لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا
और बुराई से रोकना, ये हमारा फरीजा है, ये हम पर फर्ज है कि भाई आप अगर कुछ जानते हो तो बताओ सामने वाले को। अगर आप अलिफ भी जानते हो ना, अगर आपको सिर्फ अलिफ का पता है, सिर्फ अलिफ, तो आपका फर्ज बनता है कि दूसरों तक उस अलिफ के इल्म का फर्ज बनता है। ये थोड़ी ना है कि हम जो जानते हैं वो लेकर के बैठ जाए। लेकिन बात ये है कि तरीका होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि कड़वी बातें जो है, सच्ची बातें जो है वो कड़वी होती है। नहीं, सच्ची बात कभी कड़वी होती ही नहीं है, वो सच्ची बात सच्ची ही होती है। सच्ची बात जो है ना वो सच्ची होती है, कभी कड़वी हो ही नहीं सकती। लोग कहते हैं हम सच बोलते हैं ना तो हम बुरे लग जाते हैं, है ना। लोग नहीं कहते हैं कि हम जब किसी को सच्ची बात बताते हैं तो लोगों को बुरा लगता है, हम बुरे बन जाते हैं। नहीं, सच्चा आदमी कभी बुरा लगता ही नहीं। अब तुम लोग पूछोगे कैसे, है ना, तुम लोग पूछोगे कैसे। तो भाई इस पूरी दुनिया में सबसे बढ़कर के, सबसे अच्छा और सबसे बढ़कर के सच्चा कौन था, है ना। इनसे बड़ा सच्चा कोई था ही नहीं। अरे जब मक्का के काफिर ये गवाही देते हो, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुमने मुझे कैसा पाया, अच्छा है ना, तुमने मुझे कैसा पाया, तो मक्का के काफिरों ने कहा था ना कि आप सादिक हैं और अमीन हैं, मतलब आप सच्चे, सबसे बड़े सच्चे हैं और सबसे बड़े अमानतदार हैं, यही तो कहा था। तो जिसकी सच्चाई की गवाही गैर मुस्लिम देते हो ना, जो मुसलमान नहीं है, जो काफिर है, और काफिर होके भी जिसकी सच्चाई की गवाही देते हो, भाई उससे बड़ा सच्चा कोई होगा। वही आला हज़रत के कलाम में सबसे आला हुआ है, आला हमारा नबी, तो मतलब उनसे बड़ा सच्चा कोई नहीं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा सच्चा कोई नहीं। अब अगर कोई ये कहे कि सच्चा आदमी लोगों को कड़वा लगता है ना, अगर हमारा ये फलसफा है ना, लोग ये कहते हैं कि भाई सच्चा आदमी कड़वा लगता है, तो फिर हमारे नबी से इतनी मोहब्बत क्यों है, जबकि वो सबसे बड़े सच्चे, है ना, है कि नहीं। जब सच्चा आदमी कड़वा लगता है तो फिर हमारे नबी को पता है कितने लोग फॉलो करते हैं, 150 करोड़ लोग। कितने, 150 करोड़। पूरी दुनिया में 1.5 अरब लोग हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरे जो मजाहिब के लोग हैं ना, दूसरे जो मजाहिब के लोग, वो भी मानते हैं कि मुसलमानों के नबी से बड़ा सच्चा कोई नहीं, वो भी ये मानते हैं। तो जब इतने सारे लोग मानते हैं ना, इतने सारे अरबों खरबों लोग हमारे नबी को सच्चा, तो भाई वो जब सच्चे हैं ना, तो फिर सबसे ज्यादा कड़वे होने चाहिए थे, है ना, कड़वे होने चाहिए। लेकिन नहीं, सच्चाई हमेशा मीठी होती है, कभी कड़वी नहीं होती। सच्चाई हमेशा क्या होती है, मीठी होती है, कभी कड़वी नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर हमारी सच बात से किसी को बुरा लगा, हमारी, एकदम ध्यान से सुनना, हमारी सच बात से अगर किसी को बुरा लगता है तो सच्ची बात कड़वी नहीं है, बल्कि हमें सच्ची बात कहने का तरीका नहीं मालूम। समझे, सच्चाई कड़वी नहीं है, लेकिन अगर हमारी सच बात कहने से सामने वाले को बुरा लगता है तो फिर हमें सच बात कहने का तरीका नहीं मालूम। अगर हमें सच बात कहने का तरीका पता होता तो सामने वाले को गलत लगता ही नहीं, सामने वाला उस बात को मान लेता। और कई ऐसे एग्जाम्पल है, कई ऐसे दाखले हैं, है ना, कई ऐसी मिसालें हैं दुनिया में कि लोगों ने सच्चाई को जब बताया लोगों के सामने, तो लोगों ने उस सच्चाई को कड़वा नहीं कहा, बल्कि उस सच्चाई को अपनाया है, कबूल किया है। जो इमाम हसन और हुसैन का वाकया है ना, सुना है ना, कि हजरत एक सहाबी रसूल थे, वजू कर रहे थे, मसा करना भूल गए, वजू में मसा करना भूल गए। इमाम हसन की हुसैन की नजर पड़ गई कि इन्होंने मसा करना छोड़ दिया है। तो अब होना क्या चाहिए था, डायरेक्ट खड़ा करके टोकते ना वो कि हजरत ये आपने मसा नहीं किया है, वजू आपका सही नहीं हुआ, चलो वजू फिर से करो, है ना, ये कहना चाहिए था ना। लेकिन नहीं, तरीका देखें, सलीका, बात करने का तरीका देखें, किसी की इस्लाह करने का तरीका देखें। आज ये तरीका जो है ना, हमने खो दिया है, हम भूल चुके हैं इस तरीके को। हमें न किसी को समझाना आता है, न किसी को बोलना आता है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे पास इल्म नहीं, हम जाहिल लोग हैं, हमारी कौम की अक्सरियत जाहिल है। और यही वजह है कि हमें अपनी बात सामने वाले को समझाने का तरीका आता नहीं, और अब अपनी बात समझाना आता ही नहीं है सामने वाले को।
अगर समझाना आता तो आज लोग हमें देख करके थूकते नहीं। तो क्या हुआ, हजरत इमाम हुसैन उन साहबी रसूल को रोका और रोक करके कहने लगे कि चचा जान मुझे आपसे एक काम है। बोले क्या काम है? क्या काम है? तो बोले चचा जान अगर आपको एतराज न हो तो मैं वजू करता हूं, आप देखें कि कहीं पर अगर मुझसे गलती हो जाए तो आप मेरी उस गलती को सुधार देना। अब इमाम हुसैन वजू करने लगे, वो साहबी रसूल खड़े हो गए देखने के लिए, गलती होती तो नहीं है। इमाम हुसैन वजू करते 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 इमाम हुसैन ने जानबूझ करके सर का मसा करना छोड़ दिया, सर का मसा नहीं किया। तो वो साहबी रसूल जो उनका वजू देख रहे थे ना, उनको पता चल गया कि ये एक हकीकत में मुझसे इस्लाह नहीं करवा रहा है बल्कि मेरी इस्लाह कर रहा है ना। तो इमाम हुसैन को वो साहबी रसूल रो के कहने लगी कि ओ शहजादे, है ना, ओ फातिमा ज़ोहरा के नूरे नजर, मैं समझ गया कि तू अपना वजू सही नहीं करवा रहा है, अब वजू का तरीका मुझसे नहीं सीख रहा है, मगर मेरे वजू में जो गलती हुई है ना, तू उस गलती को बता रहा है। वाकई तेरी गलती बताने का अंदाज वाकई निराला है। तो कहने का मतलब और मंशा यही है कि हमें इस्लाह करने का तरीका नहीं मालूम, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे अंदर इल्म नहीं है ना। हम खुद नमाज नहीं पढ़ेंगे लेकिन अपने बच्चे को कहेंगे कि 5 टाइम की नमाज पढ़, तो भाई तू खुद ही नहीं पढ़ता है, तेरा बच्चा कैसे पढ़ेगा। हम खुद कभी कुरान नहीं खोलते हैं लेकिन बच्चों को कहते हैं कि तुझे दिन में 2 बार कुरान शरीफ खोलना है, तो भाई तू खुद नहीं खोलता है, बच्चा क्या खोलेगा। बच्चा जो वही करेगा जो तुझे करते हुए देखेगा, जो बाप को करते हुए देखता है, जो मां को करते हुए देखता है। तो अगर तुम चाहते हो ना कि हमारा बच्चा हमारी बात सुने, नमाज पढ़े, कुरान की तिलावत करे, तो सबसे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा, है ना। तभी हमारा बच्चा नमाजी होगा और कुरान का कारी होगा। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा मोहल्ला, हमारी बस्ती के लोग नेक हों, अच्छे हों और सबके साथ अच्छा सुलूक करें, तो सबसे पहले हमें सुधरना पड़ेगा, हमें सबके साथ अच्छा सुलूक करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले नेक बनना पड़ेगा। और हमें इसकी शुरुआत, अपने मोहल्ले को सुधारने की शुरुआत, अपनी बस्ती को सुधारने की शुरुआत अपने घर से करनी होगी। कि हमें पहले अपने घर को सुधारना है, अपने घर के लोगों को सुधारना, अपने बीवी बच्चों को, अब अपने घर वालों को, इनको सुधारना है। शुरुआत यहां से करनी होगी। जब घर सुधर जाए तब मोहल्ले को सुधारने की कोशिश करो, जब मोहल्ला सुधर जाए तब गांव को सुधारने की कोशिश करो, और जब गांव सुधर जाए तब शहर को सुधारने की कोशिश करो। शुरुआत हमें घर से करनी पड़ेगी। वाकिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।